हेलो हेलो हेलो। It is with great immense pleasure and excitement that we gather here today for the international event, a mega cultural festival which enables the budding talents from across India and various countries of the world to provide that platform for the students to get engaged and become more imaginative and collaborative world citizens. I testify at this moment to my powerlessness and to thy might, to my poverty and to thy will. There is none other God but thee, the helping parent, the subsisting. We are so glad you're here for us today. We're glad you came. This is the day that will last in our memories for reason to smile. That with small beginning, this humble wish is from a tender heart, casting the future, crafting a new world, making a burning a flame, masters of wisdom, to young minds, that's up a goal. We wish that you become you. We wish you give our joyful hearts. Celebrate what we bring just together. We are the one voice. We are the one voice. We are the welcome you. We are the one voice. We are the welcome you. I would now like to invite all the distinguished guests and delegates and all the in charges and coordinators to light our traditional lamp, which epitomizes the true spirit of the occasion and bears the light of CMS towards the world for global peace. So ladies and gentlemen, let's welcome them on stage by a huge round of applause. All over the world, for peace and harmony. May the Lord keep His light always burning forever and ever. Indeed, a proud moment for all of us. I hereby declare Celesta International 2023 open. Indeed, a proud moment for all of us. We can cherish the moment with a big round of applause. S is song which is present. He is
Stone Age auditorium, heavy show of performance control. Music is the food of soul, so chill and freak and rock and roll. Celesta, See how their presence signifies a moment of inspiration and wisdom. Celesta. We invite our chief guest. Yes, ma'am. We would feel honored if you could please share some of your valuable insights, inspiration and wisdom with us. सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस द्वारा आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव सेलेस्टा 2023 में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि एक ऐसा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है जो अभी मैं देख भी रही थी कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेके गुजरात तक हमारी संस्कृति एक है, इसका ऐसा प्रदर्शन किया गया। ऐसे अवसर पर सिटी मोंटेसरी स्कूल के संस्थापक आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी एवं आदरणीय श्रीमती भारती गांधी जी, विद्यालय की प्रेसिडेंट एवं एमडी प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन जी, महासचिव श्री आरसी गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथिगण और विशेष रूप से आए भजन गायक जो सुबह ही हम लोगों के ईश्वर से जोड़ने वाले ऐसे अनूप जलोटा जी, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। सीएमएस अलीगंज फर्स्ट कैंपस की वरिष्ठ प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति कश्यप जी एवं प्रधानाचार्य श्रीमती शिवानी सिंह एवं विभिन्न शाखाओं की प्रधानाध्यापिकाएं व देश विदेश से पधारे संगीत विशेषज्ञ, संगीत प्रेमी, शिक्षक एवं छात्र दल और प्रेस के मेरे बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गांधी जी को और आदरणीय आंटी हमारी भारती जी, जिन्होंने मेरा जिस तरह से अभिनंदन किया है, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं इसके लायक थी। इतना अद्भुत, इतना मुझे आज लगने लगा कि मैं शायद कुछ किया होगा जिसके कारण मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, आपके साथ हूँ और मैं कुछ यहाँ से बोल पा रही हूँ। और आदरणीय गांधी जी तो मेरे ससुर जी के साथ के हैं, तो मुझे उनमें वो ही नज़र आ रहे हैं और लग रहा है कि उनके रूप में वो भी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे गांधी जी को और आंटी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल का, सभी का आभार। गीता जी का, जो लगातार मेरे साथ बैठ के मुझे यहाँ की प्रगति के बारे में बता भी रही थी। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि सीएमएस की अलीगंज प्रथम शाखा द्वारा इस संगीत, नृत्य, गायन, लोक नृत्य, नाट्य, कला, पेंटिंग, कोरियोग्राफी आदि के सांस्कृतिक महोत्सव को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कलाओं के माध्यम से भावी पीढ़ी की बहुमुखी जो प्रतिभा है उसके विकास के साथ साथ उनका जो मानवीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो भी विकसित होना चाहिए। वास्तव में साहित्य और संस्कृति और संगीत जहाँ जीवन में विविधता लाते हैं, वहीं ये सभी प्यारे बच्चों, आपको पता है कौन बोल रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर, जो गवर्नर भी रही हैं। मालूम है कौन बोल रहा है? ध्यान से सुनिए प्लीज।
वास्तव में साहित्य, संस्कृति और संगीत जहाँ जीवन में विविधता लाते हैं, वहीं ये सभी मानव मात्र की एकता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संगीत को तो आत्मा के भोजन की भी संज्ञा दी है और हमारी संस्कृति का आधार भी संगीत है। जैसा मैं अनूप जी से अभी कह रही थी कि मेरी सुबह आपका भजन सुनने से होती है। और अनूप जी, एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं बैजू बाबरा का वो भजन सुनती हूँ तो लगता है कि ईश्वर के पास पहुँच गए हम। मन तड़पत दर्शन को आज, लाइट है इतना सुंदर भजन सभी बच्चों को वो सुनना चाहिए। अनूप जी ने जो भजन सुनाया उसमें जो उनके भाव थे उसको समझना चाहिए कि हम ईश्वर को किस भाव से बुलाएं। केवल मंदिर में जाके पूजा करना जरूरी नहीं है, आपके अंदर का भाव क्या है। क्या आप मीरा की तरह उन्हें प्रेम से बुला रहे हैं या सबरी की तरह अपने झूठे बेर जिन्होंने खिलाए उस तरह का भोग उन्हें लगा रहे हैं। तो जो मन में जब ये भाव आएगा तभी हम ईश्वर से जुड़ पाएंगे। यहाँ जो अभी जितने भी मैंने डांस के माध्यम से, संगीत के माध्यम से कार्यक्रम देखे, उसमें एक ही बात मेरी तो समझ में आई है कि गांधी जी और आंटी जी, उनकी बेटी और ये सारा परिवार मिलके मोंटेसरी सिटी मोंटेसरी स्कूल का मिलके एक ही बात सिखा रहा है बच्चों को कि हमें शांति से जीना है, हिंसा से दूर रहना है, ईश्वर से जुड़ना है। बच्चों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे जीवन के किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते। ईश्वर ही एक ऐसे माध्यम है, गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचा देगा। मेरा बचपन का सपना था, मैं जानबूझ के कह रही हूँ उस बात को, मुझे राजनीति में आना था। मैं चाहती थी कि लोग मुझे जानें, उसके लिए मैं पूजा भी करती थी, ईश्वर को भी याद करती थी और जितने भी सेवा के कार्य हैं उनमें भी मन लगा के करती थी और पढ़ाई तो खैर करती थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जीवन का जो भी लक्ष्य आपने तय किया हो, आपने जो भी सपने देखे हों, उसमें ईश्वर को ही माध्यम बना के चलना आज का उद्देश्य यही था। अगर ईश्वर को आप माध्यम मानेंगे तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं और आपका जो लक्ष्य है वो ज़रूर पूरा होगा। मैं इसके माध्यम से आपको कहना चाहती हूँ। और यही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो नई शिक्षा नीति आई है वो भी यही कहते हैं कि इस प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता वसुदेव कुटुंब, सारा विश्व हमारा परिवार है, के अनुरूप सारे विश्व को अपना परिवार मानते हुए विश्व की सारी मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके लिए संगीत भी एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में संगीत और संस्कृति के इसी महत्व को समझते हुए हमारी नई शिक्षा नीति में इन दोनों को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तव में किसी भी देश के संगीत और संस्कृति में वह शक्ति समाहित है जिनके द्वारा व्यक्ति के चिंतन, मनन और सोच को रचनात्मक दिशा में जोड़ा जा सकता है। आज जबकि विश्व में तरह तरह के हथियार बनाने की होड़ मची है, पूरा संसार की सुख और शांति इससे छिन गई है, ऐसे विषम समय में बच्चों में संगीत के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम से विश्व एकता और विश्व शांति के बीज बोने की परम आवश्यकता है, जिसके लिए CMS के तत्वाधान में ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय सेलेस्टा महोत्सव विश्व शांति एवं विश्व एकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बच्चों, मेरा भी यही सपना है कि आप क्योंकि आप इस देश के भविष्य हैं, इसकी नींव हैं, और जैसा जी अभी अनूप जी ने कहा भी कि आप अब सोने के शेर हैं, चिड़िया नहीं है, शेर हैं। आप वो करके दिखाओ, पूरी दुनिया में भारत के लिए
एक ऐसी छाप छोड़ो जिससे कहे कि अच्छा ये भारत के बच्चे हैं, ये भारत के बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये भारत के बच्चे विश्व शांति के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बच्चों, मेरी आप लोगों को यही शुभकामनाएं, इसी बात पर आगे बढ़ना, भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाना। आज के अवसर पर मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। It's my great pleasure to briefly translate what our Honorable Minister for Women's Welfare and Family Welfare, Mrs. Baby Rani Maurya ji, has said. She said, thanks for calling me as a chief guest to this great event that City Montessori School's Aliganj campus has organized, and that this event has been organized to develop a very important non-academic aspect of the personalities of our students. She said music is the food of the soul, and she referred to the fact that Honorable Shri Anup Jalota ji, she referred to him and she said that when she remembers the film, the song from the film Baiju Babra, Mera Man Darpan Kehlaye, that she is inspired by the devotional nature of the music and how music has the power to stir and move the soul and to inspire nobility in the soul. ऐसी लागी लगन चांद अंगड़ाइयाँ ले रहा है, कभी कभी भगवान को भी, and तेरे मन में राम. A beautiful presentation by the Emperor of Bhajan, Mr. Anup Jalota ji, is going to be presented before us. We welcome you, sir, on stage with immense pride and honor in our hearts. कि हमारे बीच में हमारी मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, मुख्य अतिथि के रूप में पधारी हैं। आप उत्तराखंड की पूर्व महामहिम राज्यपाल गवर्नर रह चुकी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार की कैबिनेट मंत्री हैं। हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपका जन्म 15 अगस्त 1956 को आगरा में हुआ है। आपको अपनी पूजनीय माता श्रीमती कुसुम देवी जी एवं पूजनीय पिता श्री राम सिंह जी से समाज सेवा के उच्च संस्कार बचपन से ही मिले हैं। आपके पिताजी आगरा नगर निगम की निगम के पार्षद रहे हैं, जबकि आपके आदरणीय ससुर जी एक IPS अधिकारी थे। आप बचपन से ही अत्यंत मेधावी, न्यायप्रिय, सेवाभावी एवं अनुशासित छात्रा रही हैं। इस समारोह की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। आपकी उपस्थिति हम सभी को प्रसन्नता और गर्व का अनुभव करा रही है। 15 अगस्त 1956 को आगरा में जन्मी श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी को आदरणीय माताजी श्रीमती कुसुम देवी जी और आदरणीय पिताजी श्री राम सिंह जी से परिश्रम, अनुशासन और समाज सेवा के संस्कार मिले। मेधावी और अनुशासित छात्रा रहीं श्रीमती मौर्य ने वर्ष 1990 में राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण किया। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रहते हुए आपने अथक परिश्रम किया और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आपकी योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए वर्ष 1995 में आपको आगरा के महापौर पद का प्रत्याशी बनाया। आपने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और आगरा की पहली महिला महापौर बनी। आपकी लगन और कार्यकुशलता को देखते हुए आपको भाजपा के संगठन में अनेक अन्य दायित्व भी सौंपे गए, जिनका निर्वाह आपने सफलतापूर्वक किया। राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य बाल संरक्षण आयोग की सदस्य के रूप में आपकी भूमिका सराहनीय रही।
आपको उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व सौंपा गया। वर्ष 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की दोबारा सत्ता संभालने के साथ ही महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व आपको सौंपा। कैबिनेट मंत्री के रूप में आपने अपनी कार्यशैली की विशिष्ट छाप छोड़ी है। हम आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्य हुए हम आज आप जो इस प्रांगण में पधारे, हर्षित है हम तन मन से, जागी है भाग्य हमारे। आपकी कर्मठता ही बनी है आज आपकी शान। आपका स्वागत करने पर हम सबको है अभिमान। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। छायो रे छायो रे छायो रे, हृदय में आनंद छायो रे। छायो रे छायो रे छायो रे, हृदय में आनंद छायो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। मानवता की मूर्ति आप है, अनुपम काम किए हैं हो। मानवता की मूर्ति आप है, अनुपम काम किए हैं। कठिन परिश्रम और लगन से निर्णय सदा लिए हैं। अनुपम है उत्साह समय मन भावन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आयो रे आयो रे आयो रे, आज ये शुभ दिन आयो रे। आपकी कार्य कुशलता से ही हर्षित है जन सारा।
बन के जोगन चली महलों में पली, बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने